तीन ओंकार मेंटेन प्राप्त। इनहेल, डीप ब्रीदिंग। पहले रिलैक्सिंग ब्रीथ के लिए हम जो हम वार्म अप करते हैं उसके बाद हम रिलैक्सिंग ब्रीथ करेंगे। तो इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू माउथ। मुंह से मुंह को सर्कल का शेप बनाते हुए पूरी तरह से सांस को निकालना है, लेकिन यू आर ब्लोइंग द कैंडल। इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथ इन, पेट पूरा अंदर चला जाएगा व्हेन यू एक्सहेल। Last time, inhale through your nostril, exhale through your mouth. Feel more relaxed. Now take a deep breathing. ओंकार के लिए तैयार होंगे। Inhale. Oh. Inhale. Oh. जय श्री नमस्कार मुद्रा। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palm, rub your eyes, and slowly open your eyes. Now we start today's session. First, Shuksham of neck. नेक के सारे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इनहेल हेड अप, कमर गर्दन सीधी रखते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में, या आप नहीं कर सकते तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते। इनहेल हेड अप, एक्सहेल हेड डाउन, chin to the chest. Inhale head up, exhale chin to the chest. Inhale head up, exhale chin to the chest. Inhale center, look towards your right, look back with exhale. इनहेल सेंटर, श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर जाएंगे। पीछे की तरफ देखना है ताकि आपके चीन और आपके शोल्डर के लेवल तक आ सके। नेक की पूरी ट्विस्टिंग होगी। इनहेल सेंटर, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए फिर से राइट, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, सेंटर। नाउ रोटेशन के लिए चिन को चेस्ट के पास लगाएं एंड देन इनहेल करते हुए राइट शोल्डर से, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर से फिर से चिन को चेस्ट पे लगाएं। ये एक राउंड हुआ। इनहेल अप टू द राइट शोल्डर, back and exhale from your left shoulder. Inhale up to your right shoulder and exhale from your left shoulder. Inhale up to your right shoulder, exhale from your left shoulder. Inhale up to your right shoulder, exhale from your left shoulder. Inhale up to your right shoulder, exhale from your left. Now reverse rotation from left to right. Inhale up to your left and exhale from your right. लेफ्ट साइड से ऊपर जाते हुए सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे एंड देन राइट शोल्डर से नीचे आएंगे। Now inhale from your left shoulder,
Exhale from your right. Inhale from your left shoulder and exhale from your right. Inhale from your left shoulder, exhale from your right. लेफ्ट साइड जाते हुए सांस करें और राइट साइड में आते हुए सांस को छोड़ें. चिन को चेस्ट के लगाएं. फिर से लास्ट राउंड and exhale from your right shoulder. Now take a deep breath in. Come to the center. Keep your eyes closed and feel the strengthening in your neck muscles. Place your right palm over your left ear and bend your neck towards right. अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट ईयर पर लगाते हुए नेक को बेंड करेंगे और ऊपर की तरफ देखिए. Look upward and hold for 20 seconds. Feel the stretching on your left neck. लेफ्ट साइड के स्ट्रेचिंग को फील करो नेक के पार्ट पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Come back to center. Now take a deep breathing. Left palm on your right ear and then bend neck towards your left side. Look up. Hold 1 2 3 4 5 6 7. Now open your hands, open your arms, stretch as much as you can. Hold for 20 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Fingers open and close with the stretching hands. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now place your palm over your shoulder and open it. Elbow strengthening. 3 4 5 6 7 8 9 10. Place your palm over your shoulder and shoulder rotation. Start your shoulder rotation. When you come front, touch your elbow, and when you go back, touch your back of the palm. यानी आगे आते समय आपको एल्बो को टच करना है और पीछे जाते समय अपने पाम के बैक साइड को टच करना है. तो फुल रोटेशन होगा आपका शोल्डर का. एंड फील द स्ट्रेंथनिंग इन योर शोल्डर मसल्स. 3 4 5 6 7 8 9 10. Now reverse rotation from front to back. 1 2. When you open your chest, breathe in. When you contract your chest, breathe out. 5. जब भी आपका चेस्ट एक्सपांड हो आपको श्वास लेनी है और जब भी आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो आपको श्वास को रिलीज करना है, छोड़ना है. 9 and 10. ये आपके शोल्डर मसल्स पे, आपके बैक ऑफ अपर बैक पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, साथ में नेक पे. तो जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर रोटेशन में या शोल्डर की स्ट्रेंथ में कहीं तकलीफ हो रही है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सब में ये बहुत अच्छे से वर्क करती है एक्सरसाइज. नाउ अभी हम साइड बेंडिंग करेंगे. तो पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं. स्ट्रेच seated mountain pose. Stretch your whole body upward and then place your right palm down and side bending. Then come up
left palm down and side bending, right palm over your head. Now we do alternately like this. 1, 2, don't bend your elbow. जितना आप झुक सकते हो झुको, लेकिन एल्बो को बेंड नहीं करना है. टच कर सकते हो पाम को तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऊपर रखते हुए भी देखते हुए कर सकते हो. 5, 6, 20, स्टॉप. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. ब्रीदिंग का कैसे ध्यान रखना है इसमें? जब आप नीचे झुक रहे हो तो ब्रीद आउट हो, जब आप सेंटर में आ रहे हो तो इनहेल कर लो. इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते. नाउ ट्विस्टिंग, बैक ट्विस्टिंग करेंगे. तो लेफ्ट हैंड आपका राइट नी पे और राइट पाम बैक के पास में. ट्विस्ट कंप्लीटली एंड लुक ओवर योर शोल्डर. लुक योर पाम ओवर योर शोल्डर. अपने हथेली की उंगलियों को अपने शोल्डर के ऊपर से देखेंगे. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Whenever you twist, you don't bend. ये साइड ट्विस्टिंग है तो इसमें बेंड नहीं होना, सिर्फ जस्ट आपकी मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी पूरी ट्विस्ट होना. नाउ चेंज. राइट पाम ओवर योर नी एंड लेफ्ट पाम near the back. Twist completely and hold. Look your palm towards your over your shoulder. And 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come back to center. Right palm over your knee and left palm over your head and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to center. Change your palm and look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to center. ट्विस्टिंग पूरी बॉडी को हमें पूरी तरह से ट्विस्ट करना है. साइड बेंडिंग करनी, ट्विस्टिंग करनी, ताकि हमारी हर मसल्स इंप्रूव हो जाए. अभी दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, वे करेंगे. आर्म के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे, जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें करेंगे. और ये वाला आर्म के लिए हम, चलो दूसरा आर्म के लिए करते हैं. पहले हम साइड ट्विस्टिंग कंप्लीट कर ले, फिर आर्म के लिए करेंगे. आर्म के लिए अभी जो शोल्डर रोटेशन है वो भी हमारे आर्म पे काम कर रहा है. ठीक है. और अब हम दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए बैक रोटेशन करें. थोड़ा सा हेड को झुकाते हुए होल्ड करो 10 सेकेंड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back to center. Breathe in and exhale. Breathe out. Twist towards your right. Both the hands parallel to the mat. दोनों हाथ को पैरेलल टू ईच अदर रखते हुए हम करेंगे. होल्ड. 1, slightly bend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to center. ये हमारा ट्विस्टिंग हुआ. अभी शोल्डर के लिए अगर और हमें कुछ करना है तो हम क्या करेंगे? शोल्डर के लिए अपने राइट हैंड का अदब बनाए. राइट हैंड का अदब बनाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के अंदर ले. यस. राइट हैंड का स्टैंड बनाना है और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के अंदर डालना. यस. पूरा हाथ स्ट्रेट रखो और लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर. लेफ्ट शोल्डर की साइड वाली दिशा में देखेंगे. होल्ड. 1, 2, हाथों को और ऊपर रखें. 3, और प्रेस योर राइट पाम टुवर्ड्स योर चेस्ट. राइट पाम को चेस्ट की तरफ प्रेस करें तो आपके यहाँ से जो शोल्डर मसल्स है वो और टर्न अप हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come back to center and change your palm. लेफ्ट हैंड का अदब बनाए, लेफ्ट हैंड को स्टैंड बनाए एंड देन राइट हैंड उसके अंदर रखें
and press your left hand over your chest की तरफ press करेंगे and look towards your right side. Yes, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कोशिश करो एल्बो जितनी स्ट्रेट रख सको रखने की. अभी हमने दोनों शोल्डर पे ज्यादा, आपको लगा होगा, महसूस हुआ होगा कि शोल्डर पे स्ट्रेंथनिंग हो रही है, शोल्डर की मसल्स में थोड़ा सा. जब हम राइट साइड करते हैं, राइट स्ट्रेच होता है हमारा आर्म, और राइट साइड हम देखते हैं तो राइट शोल्डर हमारा टर्न अप होता है, जब लेफ्ट साइड करते हैं तो लेफ्ट टर्न अप. नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन. उज्जयी प्राणायाम के लिए तैयार होंगे, जो हमारे गले पे वर्क करता है, थायराइड ग्लैंड पे, पैराथायराइड ग्लैंड पे, और हमारी आवाज को मधुर बनाने वाला. तो उज्जयी प्राणायाम के लिए हम एक बार क्रिया के साथ करेंगे, फिर बिना विदाउट क्रिया करेंगे. तो क्रिया के साथ कैसे करते हैं? इनहेल, श्वास को, विंड पाइप को टाइट करते हुए श्वास को अपने अपर लोब में भरना है, और फिर एक्सेल करते समय नीचे झुकना है, लेकिन ठोट के ऊपर अवेयरनेस रखनी है. इनहेल, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. अगर आप फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते तो आप सीधे सीधे बैक का रोटेशन कर सकते हो. अगर आपके कमर में प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे आप बैक का रोटेशन करते हुए श्वास को बाहर निकाल सकते हो. ना अगेन इनहेल, फीट डाउन करेंगे इसी तरह. एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, the awareness of the throat area. Inhale, exhale, right to left, come back to center. अभी reverse rotation. Inhale, exhale, bend from your left side. Inhale, exhale from left to right. श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आए, गले पे अपना ध्यान ले जाए. Inhale, exhale, श्वास छोड़ते हुए ऊपर. Feel the sensation in your throat area. Take a deep breath in without any क्रिया हम करेंगे. Without any क्रिया कैसे करेंगे? Inhale, take a deep breath in. एक बार मुझे देखिए, लॉक, जालंधर लॉक लगा देते हैं, गले का लॉक लगा देते हैं, एंड देन उसको सीधा करते हुए, नेक को सीधा करते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे, लेकिन हमारा ध्यान हमारे गले पे होना चाहिए, विंड पाइप पे होना चाहिए. या आपकी श्वासें जो विंड पाइप को टच करती हुई धीरे धीरे लेफ्ट साइड से बाहर निकल रही. नाउ स्टार्ट करेंगे. इनहेल, लॉक योर नेक, open your neck lock, close your right nostril, and exhale through left with awareness of your throat area. Slowly breathe out. Again, inhale, exhale, नेक को, लॉक को खोलते हुए सांस को लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे. Again, inhale, last round. Lock your neck, open your neck lock, close your right nostril, and exhale through left with awareness of your throat area. हमने उज्जैन प्राणायाम के 9 राउंड किए. 9 राउंड अगर 9 टाइम्स आप करते हो तो बहुत ज्यादा फायदा है. अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसको आप 20 राउंड तक कर सकते हैं. नाउ इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथ इन. अभी नेक का रोटेशन, नेक का मूवमेंट करेंगे, नेक रोटेशन. 1, 2, 3. नाउ रिवर्स. 1, 2. नेक से कोई बैक की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से बैक की स्ट्रेंथनिंग कर सकते. ब्रीदिंग, ओपन योर बॉडी, ओपन योर लेग्स. एंड नी में प्रॉब्लम होती है, हमें ज्यादातर नी मसल्स में लोग प्रॉब्लम रहती है, तो हम
इस तरह से अगर बैठ सकते हैं, अगर चेयर पे भी बैठ के करना चाहे तो चेयर पे भी कर सकते हैं, तो मैं चेयर के साथ भी आपको बताने वाली हूँ आज। तो इस तरह से नी को अप एंड डाउन करोगे, अपने मतलब पाँव को मैट के ऊपर पछाड़ना है, मैट के ऊपर लाना है बार बार इस तरह से, ताकि यहाँ की मसल्स का ब्लड रोटेशन बढ़े। आप जो नी कैप के नीचे जो हमारी मसल्स होती है उसका रोटेशन नहीं होने से भी समटाइम्स आपकी नी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ की जो मसल्स है, थोड़े हम नी की प्रॉब्लम वालों के ऊपर ध्यान देते हैं अभी। अभी हमें पहले टोज इन एंड आउट करना, सूक्ष्म व्यायाम हमारे लेग के सारे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम नी के ऊपर काम करेंगे। टोज इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट 5 टाइम्स। नाउ एंकल मसल स्ट्रेच करेंगे एंड फ्लेक्स करेंगे। आप इसको ब्रीदिंग के साथ करो, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल, एक्सहेल। जब आप इसको फ्लेक्स करेंगे, श्वास को छोड़े, जब आप स्ट्रेच करें, ब्रीद इन करें, एक्सहेल। एक्सहेल के समय आप देखो काफ मसल्स आपकी पूरी तरह से मैट के ऊपर स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच योर एंकल मसल्स, फ्लेक्स इट कंप्लीटली, स्ट्रेच इट, फ्लेक्स इट। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ अपने हिप्स के पास लगा रखें, फिंगर्स आपकी हिप्स की तरफ है। राइट लेग को स्ट्रेच करो ताकि आपकी कमर से स्ट्रेट रहे। ऐसा नहीं, बहुत सारी बार क्या आप ऐसे हो जाते हो, तो ऐसे नहीं होना है। इसलिए हम हाथ को अपने हिप के पास रखते हैं, उंगली हमारी लेग्स की तरफ। अब राइट लेग को स्ट्रेच करो, लेफ्ट को फ्लेक्स करो, आपकी बॉडी आपकी बैक से स्ट्रेट रहेगी। एंड देन अल्टरनेट लेग से हम स्ट्रेच करें, राइट स्ट्रेच, लेफ्ट स्ट्रेच। अगर आपको यही चेयर पे करना है तो मैं चेयर के साथ भी आपको बता देती हूँ। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो कैसे करना है, पाँव को ऐसे लंबा कर लो और स्ट्रेच, एक को काफ मसल्स को आप सीधा कर रहे हो, एक आपका स्ट्रेच। देन अल्टरनेट लेग से दोनों हाथों से आप अपने साइड साइड को पकड़ लेंगे, चेयर की साइड को, ताकि आपको गिरने का नहीं डर रहे। और बहुत पीछे बैठ के नहीं करना है क्योंकि पाँव ऊपर हो जाएंगे। चेयर के आगे बैठोगे तो क्या हुआ, आपका लेग स्ट्रेच होगा इस तरह से। चेयर के आगे बैठोगे तो लेग स्ट्रेच होगा, ठीक है ना। इसी में हम साइड ट्विस्टिंग ऐसे कर सकते हैं, चेयर के साथ साइड ट्विस्टिंग। और फिर नी कैप का रोटेशन, यहां से हमारा जो नी को स्ट्रेच करने का है, नी कैप का उनके नीचे वाला पार्ट, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। नाउ टोज पे आएंगे और डाउन जाएंगे, हिल्स पे जाएंगे। टोज, हिल्स, ये भी हमारे काफ मसल्स को बहुत मजबूत बनाते। टोज, हिल्स, टोज, हिल्स, टोज, हिल्स। जो चेयर आराम से कर सकता है वो खड़े रह के भी टोज और हिल्स का प्रैक्टिस कर सकता है, और जो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है वो इस तरह से चेयर पे बैठ के टोज पे आए, देन हिल पे आए। तो ये हमारे काफ मसल्स को बहुत इंप्रूव करते हैं। अगर इसी को हम खड़े लेवल पे करेंगे तो टोज, हिल्स, टोज, हिल्स, टोज, हिल्स, टोज, हिल्स, टोज, हिल्स, toes, heels. Come on your toes and come on next heels. इस तरह से ये आपके काफ मसल्स को, जो हमारी लेग के सारी मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उन सबको टोन अप करने के लिए ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है, ताकि हम पूरी तरह से अपने लाइफ को बैलेंस कर सके, चल सके, आराम से आ जा सके। यस, नाउ ये हमने सिंपल किया। अभी हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, जो हमारे लेग को और ज्यादा इंप्रूव करता है। तो उसमें कैसे करना है आपको,
वी शेप बना देंगे दोनों फुट का, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। हमेशा जब भी ताड़ासन करते हैं ना, तो वी शेप में अगर आप होते हैं फुट अगर आपके, तो आपका बैलेंस अच्छे से जाता है। नाउ कम ऑन योर टोज, interlock your hands near the chest and stretch it up over your head. Turn the palm towards ceiling and focus on your वन पॉइंट, एनी वन पॉइंट, कहीं पे भी आंखों का एक फोकस बना ले, ताकि आपका बॉडी का बैलेंस बना रहे। एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, एज यू कैन मैनेज द बैलेंस। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। धीरे से अपने पाँव को नीचे रखेंगे जमीन पे या आपके मैट पे। Then stretch your whole body upward. Again stretch your hands and stretch your body, and then bend towards right. ये हमारा त्रिएकताड़ासन। Look towards your palm and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Come back to center. Now change the direction. Now bend towards left side, look towards your palm, and whole body weight equally transfer on your both the foot. When you bend, don't come on your left foot or one foot. आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस दोनों पाँव में इक्वली होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी झुको दोनों पाँव में इक्वल बैलेंस हो। 1 2, तो फर्मली ग्राउंडेड राइट पाम ऑल्सो, राइट फुट ऑल्सो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Come back to center. Now full rotation हाथों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हमारे शोल्डर के रोटेशन को, शोल्डर को अच्छा बनाते हैं, टर्न अप करते हैं, स्ट्रेंथ अप करते हैं। दोनों फुट के अंदर हाफ फुट डिस्टेंस, 1 फुट डिस्टेंस रखें, एंड देन हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड रोटेशन स्टार्ट करें। बैक रोटेशन अगर आप खड़े हो सकते हो तो खड़े रह करके, नहीं तो चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। 3 4 5 रिवर्स रोटेशन। 1 सिटिंग में बैठे हुए भी आप आसन में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। 4 एंड 5। नाउ दोनों हाथों को अपने थाई इसके पास में रखते हुए साइड बेंडिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड पूरी तरह से सीलिंग की तरफ, राइट हैंड डाउन, मतलब लूज छूटा हुआ, और शोल्डर अलाइन। पूरी तरह से शोल्डर आपका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। देन अल्टरनेट दूसरी साइड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम बैक टू सेंटर। ये हमारे एक बार राइट पार्ट को स्ट्रेच करता है जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं, जब हम राइट साइड जाते हैं तो लेफ्ट पार्ट को स्ट्रेच करता है, यानी हमारे स्टोमक, हमारे लीवर जो हमारा इधर है, स्टोमक, स्प्लीन, इन सब को टर्न अप करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, जो भी हमारे ऑर्गन है उनको टर्न अप करना है। नाउ फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेक। दोनों हाथों को वेस्ट पे रखते हुए, अंगूठी को पीछे रखते हुए, देन डू बैकवर्ड बेंडिंग। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते खड़े खड़े, तो आप चेयर पे बैठ के चेयर के आगे आ जाओ, और अपने हाथों से चेयर को पकड़ते हुए अपने हेड को चेयर के पीछे वाले बैक पार्ट पे ले जाओ। ये भी हमारा कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर आपको चक्कर आते हैं, है ना, तो भी आप इस तरह से चेयर पे बैठ के कर सकते हो। देन कम बैक टू सेंटर। आगे की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएं। अगेन
दोनों हाथों को रेज करते हुए हिचकाए, अपने हेड को सिर के हेड के पार्ट को चेयर के बैक पे लगा दें, तो भी आप अच्छे से बैकवर्ड बेंडिंग होगी आपकी। देन कम फॉरवर्ड एट 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का बनाना है चेयर पे बताया, अभी मैं स्टैंडिंग पोजीशन में 90 डिग्री का इस तरह से बनाएंगे। तो आपके नी को लॉक करते हैं, यहाँ पे एकदम नी की मसल्स टाइट हो जाएगी। लॉक कैसे करते हैं, कोई खोल नहीं सके उसको, एकदम लॉक। Yes. And hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to center. And release. ये बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम है जो हमारे, और एकदम सिंपल व्यायाम है। इसको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, बॉडी में पेन रहता है सारी जगह, वो इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। साइड बेंडिंग, साइड ट्विस्टिंग के लिए तैयार होंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग कैसे करते हैं, एक हाथ को अपने कमर पे लगा दे, दूसरे हाथ को अपने शोल्डर पे लगा दे, अपोजिट शोल्डर, एंड देन फेस कंप्लीटली लुक टुवर्ड्स योर अपोजिट हिल। जब आप लेफ्ट साइड से जाओगे तो आपको राइट हिल को देखना है, जब आप राइट साइड से जाओगे तो आपको लेफ्ट हिल को देखना है। पाँव को बेंड नहीं करना है, सीधा रखते हुए इस तरह से ट्विस्ट होंगे। 20 टाइम्स करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Come back to center. ये हमारे थोड़े स्टैंडिंग और सिटिंग की सूक्ष्म व्यायाम। अब हम सिटिंग पोजीशन में आ जाए, शवासन में। शवासन में हम कैसे अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, उसके पहले हम थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, शवासन में हम थोड़ा सा कैसे अपने आप को रिजुनमेट करें वो हम देखेंगे। दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे लगा दें ताकि आप अपने लेग को रेस्ट कर सको। देन राइट लेग अप 10 टाइम्स। 3, 4, 5, राइट लेग को ही हम अप कर रहे हैं। 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपको अगर सीवियर बैक में प्रॉब्लम है तो आप उसको अप नहीं करें, क्योंकि बैक की प्रॉब्लम में आप करेंगे तो और ज्यादा आपको दर्द होगा। तो हमें उस समय ऐसे फोल्ड करना है, पास में लाना है। 1, 2, 3, 4। अब चाहे तो हाथ लगा के इसको अपने चेस्ट की तरफ प्रेस भी कर सकते हैं, उससे भी आपके कमर की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, प्लस आपका एब्डोमिनल दबने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा। 5, 6, 7, each and every time press it towards your chest. 8, 9 and 10. Now release it. Then अगर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग है तो आप इस तरह से अपने लेग को ओपन अप भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों हाथों से काफ मसल्स को पकड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ, हेड की तरफ उसको ओपन करो। नाउ रिलीज। अभी यही हम लेफ्ट लेग से करेंगे। 1, 2, एक पार अर्ध हलासन भी कह सकते हैं इसको, 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपका। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ इस तरह से और ओपन अप कर सकते हो आप। और अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है और नहीं भी है तो भी आप इस तरह से एक पाद पवन मुक्तासन की क्रिया कर सकते हो, जिसमें हम बैक में प्रॉब्लम है तो हम हेड को अप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेटे लेटे हम अपने लेग को चेस्ट की तरफ प्रेस कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
and release. Take a deep breath in. बीच बीच में आप सांस लेते रहें ताकि आपको थकान नहीं महसूस हो. दोनों हाथों को हथेली खोलते हैं पूरी तरह से शवासन में. कोलैप्स योर बॉडी ऑन योर मैट. पूरी तरह से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें और एक लंबी गहरी सांस लें. डायफ्रामिक ब्रीदिंग 3 टाइम्स करेंगे. पूरी तरह से एब्डोमिनल को फुलाएंगे और फिर से इसको रिलैक्स करेंगे. इनहेल, raise your abdominal up like a balloon and exhale, slowly come down towards your back. बैक की तरफ ले जाओ, पेट को पूरा खाली कर दो. Inhale, raise it up. Exhale towards your spine. Inhale, expand your abdominal and exhale completely forward toward your spine. Now take a deep breathing. अभी दोनों पाँव को फोल्ड करते हुए एक सिंपल आसन है. दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे ओपन कर ले. दोनों पाँव को फोल्ड करते हुए, नी से फोल्ड करते हुए दोनों नी के बीच में 1 फुट डिस्टेंस रखें. शोल्डर विद अपार्ट. जितने शोल्डर में डिस्टेंस है उतना ही दोनों नी में डिस्टेंस होनी चाहिए. देन ओपन योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर लेवल. शोल्डर लेवल पे अपने दोनों पाँव को रखते हुए, दोनों हाथों को रखते हुए राइट नी को अपने लेफ्ट फुट पे लगाने की कोशिश करें. इससे आपकी राइट थाई, अपर थाई बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है. एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट पाम. राइट पाम की तरफ देखने की कोशिश करें. आपका लेफ्ट नी सीलिंग की तरफ रहेगा. ठीक है. कोशिश करो आप अपने फुट को नी से टच करने की. होल्ड फॉर 10 सेकेंड. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कम बैक टू सेंटर. इसी तरह से हम लेफ्ट नी से करेंगे. लेफ्ट नी को राइट फुट की तरफ ले जाएंगे एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट पाम. लेफ्ट पाम की तरफ देखेंगे. होल्ड 1, नी फेसिंग, राइट नी फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब जो इस तरह से नहीं कर सका, जो राइट नी को स्ट्रेच नहीं कर सका ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ नहीं रख सका क्योंकि डाउन हो जाता है. अगर आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, आपकी स्ट्रेचिंग कम है लेग्स की, तो इस तरह से तो हम दोनों पाँव को ऐसे नीचे रख देंगे. दोनों पाँव को नीचे, लेफ्ट नी थोड़ा आगे जाएगा, राइट नी आपके लेफ्ट फुट पे जाएगा. इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको. एंड होल्ड 1, 2, 3, 4. लुक टुवर्ड्स योर राइट पाम. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to center. Now another side. दोनों नी को राइट साइड में प्रेस करेंगे मैट की तरफ और लुक टुवर्ड्स योर, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कम बैक टू सेंटर. ये हमारी लंबर स्ट्रेच हुई, जो आपकी बैक की मसल्स को, आपकी लेग की मसल्स को, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम, उनके लिए भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है. डेली इसको 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड होल्डिंग के साथ करें तो बहुत फायदा होगा. अभी दोनों हाथों को हम जेंटली हमारे एंकल के पास लाते हुए जेंटली टच योर पाम नियर द heel on the mat. उस तरह से रख दो एंड देन लिफ्ट योर बैक अप. ट्रंक को अप कर दो और पूरा ब्रीज पोज बनाने की कोशिश करो. आपको और ज्यादा स्ट्रेंथिंग देनी है तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो लेग की तरफ. एंड होल्ड. शोल्डर नीचे रहेगा. नेक, ये जालंधर बन अपने आप लग गया. तो थायराइड की प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है. एंड आपकी बैक की प्रॉब्लम में भी, बैक की मसल्स में भी स्ट्रेंथनिंग देता है. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly release your palm and then release your back. Come back to center. Feel the strengthening in your back muscles, in your thigh muscles, hip joint. And take a deep breathing. Turn towards your left side, right side and come on your chest. Chest के ऊपर आ जाएंगे.
बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, लेग की मसल्स के लिए हम पैसिव पोजीशन, हमारे टोस की पैसिव, ये पैसिव पोजीशन है टोस की, ठीक है। ये एक्टिव पोजीशन कहलाती है, ये पैसिव पोजीशन कहलाती है। तो टोस को हम पहले एक्टिव रखते थे जब हम माउंटेन पोज में होते हैं, और जब हम भुजंग आसन के लिए तैयार होते हैं तो पैसिव पोजीशन कर लेते हैं। फीट टुगेदर, पैसिव पोजीशन ऑफ योर टोस, एंड दोनों हाथों को, दोनों पाम को चेस्ट के पास रखो। देन इनहेल करते हुए कम अप, नावल रीजन डाउन रहेगा, नाभि आपके मैट पे रहेगी, बस आपको इतना सा ऊपर लुक अप, जितना आप ऊपर देखोगे उतना आपकी बैक की मसल्स पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बैक की मसल्स इंप्रूव होगी। जिनको लोअर लंबर रीजन 4-5 में प्रॉब्लम है वो इस तरह से कर सकते हैं। 20 सेकेंड होल्डिंग के बाद फिर से नीचे आए। जब भी आपको चेस्ट के बल आराम करना है तो इस तरह से मकरासन की पोजीशन बना दें। दोनों हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए सिर को हथेली पे रखेंगे, दोनों पाँव को ओपन अप कर देंगे। ये दैट इज मकरासन पोजीशन। मकरासन में आप इस तरह से भी आराम कर सकते हैं, और अपने लेग की या नी की मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए अल्टरनेट लेग रेजिंग भी कर सकते हैं। बैकवर्ड में लेग रेजिंग, 1, अल्टरनेट लेग रेजिंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर आपको अपने एल्बो की भी स्ट्रेंथिंग बढ़ानी तो एल्बो को जमीन पे रखते हुए अपने हथेली में चिन को लगाएं, और देन हिप टचिंग अल्टरनेट लेग रेजिंग कर, हिप को टच करते जाना है आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक टू सेंटर, फिर से जमीन पे आ जाएंगे। देन दोनों हाथों के ऊपर हथेली रखते हुए फीट जॉइंटेड ईच अदर एंड कम अप। अभी आपकी नाभि भी ऊपर हो जाएगी, एल्बो को स्ट्रेट करते जाए, लुक अप, पूरी तरह से आपके मिडिल बैक पे और आपके चेस्ट पे, अपर बैक पे, सब जगह आपकी स्ट्रेचिंग होगी। उसे फील करें। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Come back to center. Deep breathing in Makrasana position. अभी त्रियक भुजंग आसन देखेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले आए, एल्बो को स्ट्रेच करते जाएं, आपकी नवल रीजन अप हो जाएगी, और लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स योर लेग को देखने की कोशिश करें लेफ्ट साइड से, अपोजिट लेग की हील को देखें। देन कम बैक टू सेंटर, अनदर साइड, राइट साइड से अपने लेफ्ट हील को देखें। कुछ कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए देखना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी बनता है। कम बैक टू सेंटर। नाउ रिलीज। शशांक आसन में आ जाएंगे, चाइल्ड पोज। अगर आप नी को बेंड कर सकते हैं तो चाइल्ड पोज में आए, अदरवाइज आप सिटिंग पोजीशन, क्रॉस लेग पोजीशन में आ सकते हैं। ये रेस्टिंग पोजीशन ये हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छी है। शशांक आसन में या चाइल्ड पोज में उनको रेस्ट करना, तो ये अपने हार्ट के फंक्शन को बहुत बेहतर बनाता है। ब्रीदिंग, कम बैक टू सेंटर इन क्रॉस लेग पोजीशन। एक और चीज बताती हूँ, जब भी पसीना आए ना, कभी भी आसन करते समय फैन मत चलाओ, तो आपके अंदर की आपको और पसीना होगा। तो पसीना हमारे चेहरे को टोन अप करता है। जब हम उस पसीने से हमारे चेहरे की मसाज करते हैं, बहुत अच्छा फेशियल है ये एक तरह का, कि बिना किसी क्रीम पाउडर के आपके चेहरे पे एक तेज आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। कभी भी आसन करते समय फैन नहीं चलाना है, और फैन को बंद रख करके आपकी कैलोरी भी बर्न होगी। पसीना निकलेगा तो जो आपको अच्छा लगेगा कि ये कैलोरी बर्न करने का लिए वर्कआउट करते हैं तो पसीना निकलना चाहिए ना। हाँ, अगर हम फैन बंद करके सिर्फ सिंपल आसन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो भी हम इस तरह से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। आना भी एक तरह से स्किन के थ्रू आपका टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ेंगे प्राणायाम के सेक्शन में। आज हमने सिर्फ सूक्ष्म क्रिया करी, कुछ जो छोटे छोटे मसल्स पे कैसे काम करना चाहिए वो किया। अब हम प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो वज्रासन, अदरवाइज क्रॉस लेग पोजीशन, या आप चेयर पे भी बैठ सकते हो भस्त्रिका के लिए। तो इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को फिस्ट बनाते हुए चेस्ट के पास रखते हैं। अगर आपको चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठ के भी आप इस तरह से प्राणायाम कर सकते हो। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो दोनों चेयर के आगे, हमेशा पीछे मत, बैक मत लो। ये इसीलिए बता रही छोटी छोटी बातें कि बहुत सारे जने क्या पूरा पीछे बैठ जाते हैं, तो आपका बैक रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है। तो हमें आगे, थोड़ा आगे किनारे पे बैठना है ताकि हम अलर्ट पोजीशन में हो। ठीक है ना? तब हम चेयर पे बैठ के अगर हम प्राणायाम कोई सा भी करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज रेस्टिंग पोजीशन में फायदा नहीं होगा। बैक को हमेशा प्राणायाम के समय स्ट्रेट रखेंगे तो हमारी स्पाइनल कोड स्ट्रेट रहेगी। नाउ टेक a deep breathe in, make your face near the chest and start. लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस ही छोड़नी है, लेकिन फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड फोर्सफुल इनहेलेशन। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो डोंट डू फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे सांस को ऊपर ले जाए और भरते हुए जाए और नीचे आते हुए छोड़े। इस तरह से। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं तो आप फास्ट कर सकते हो। जब हम 20 राउंड नॉर्मल वाला करता है तो 10 राउंड ब्लड प्रेशर वाला करेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा उसमें। नाउ 10 राउंड के बाद ओपन, सामने की तरफ हाथों को खोल के ऐसे क्रॉस करते हुए अपने पास मिलाते हुए श्वास को छोड़ना है। ये हम सारा भस्त्रिका प्राणायाम क्रिया के साथ करें। हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही, शोल्डर, हैंड्स, रिस्ट, पाम सबकी एक्सरसाइज हो रही। 7, जिनको भी साइनेटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम, उनके लिए तो भस्त्रिका वरदान है, वरदान। ओपन योर चेस्ट एंड क्रॉस इट। क्रॉस करोगे तब आपको श्वास को छोड़ना है, ओपन करोगे श्वास को भरना है। ठीक है? 20 राउंड। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है 10 राउंड। बाद रुकेंगे। Keep your eyes closed and feel the changes into your respiratory system, blood circulatory system, and your neurosystem. All are cleansed. When your blood circulatory system become fast, so your neurosystem and each and every cells get oxygen to your blood circulatory system. So all the cells are become toxins free and turn off. You feel more energy into your whole body. Now take a deep breath in. अब हम कपालभाति का एक राउंड करेंगे। कपालभाति कैसे करना है? 1 मिनट नॉर्मल, अगर आप इंसान हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 मिनट भी रेगुलर कर सकते हो, हेल्दी बॉडी वाले। और जिनको प्रॉब्लम है वो 5 मिनट से 10 मिनट तक भी कपालभाति कर सकते हैं। जिनकी डाइजेस्टिव इश्यूज है, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गैस, अपच, ओडकार की या इनडाइजेशन की, तो वो लोग इसको कम से कम भी, जब खाना नहीं खा रखा हो 3 घंटे के बाद खाना खाने के, या खाली पेट मॉर्निंग में, आप इसको कम से कम भी 15 मिनट जरूर करें। जिससे बहुत फायदा होने वाला है। इनहेल, टेक ए डीप ब्रीथिंग। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए संकल्प डालें कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और मेरा नर्वस सिस्टम बहुत है क्लींस। कपाल भाती यानी हमारे कपाल पे चमक लाने वाला। तो कपाल यानी सिर, तो सिर के भाग को भी, न्यूरो सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, और साथ में आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को भी, जो भी है आपके। पर अगर आपको हाइपर एसिडिटी है या आपको ज्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आप इसको मत करें, क्योंकि अंडर गाइडेंस में करें, हल्के हल्के से, बिल्कुल जब हल्का हल्का पेट हिलाना वैसा।
बाकी आप नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं, बाकी जो अगर इश्यूज है तो किसी के अंडर गाइडेंस में करें। इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथिंग, कीप योर आईज क्लोज एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। एक्टिवली एक्सहेल एंड पैसिवली इनहेल। अपने आप श्वास आ जाएगी, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमें ध्यान छोड़ने पे देना है। इनहेल एंड स्टार्ट 20 डाउन, 20 स्ट्रोक्स। 1 मिनट में 1 स्ट्रोक्स लगा। पूरा फोर्सफुल एब्डोमिनल आपका पूरा स्पाइन की तरफ चला जाएगा। अगर आप चाहे तो फीलिंग के लिए अपना हाथ भी रख सकते हैं। श्वास लेनी नहीं है, पेट अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आएगा, फिर से अंदर जाएगा जब आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करें। मेरे स्माइलिंग फेस की क्रिया करें ताकि आपके चेहरे की स्माइल कहीं ना जाए। वो भी काम हम जब टेंशन स्ट्रेस लाइन से करते हैं ना, स्ट्रेस लाइन हमारे चेहरे पे आ जाती है, तो हमारा चेहरा वैसा बन जाता है। अगर हम स्माइलिंग फेस के साथ करते हैं तो हमारा चेहरा भी स्माइलिंग की तरह दिखेगा। आफ्टर 20 strokes, again take a deep breathing and start second round. Back to center. हमने 20 स्ट्रोक्स के बाद फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी है। रिलैक्स को ये हम वज्रासन में बैठ के, चेयर पे बैठ के, सोफे पे या पलंग पे बैठ के कैसे भी कर सकते हैं, या आसन पे बैठ के भी क्रॉसलेग पोजीशन में कर सकते हैं। अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए क्रॉसलेग पोजीशन या अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में आ जाएंगे। पूर्ण पद्मासन के लिए लेफ्ट लेग को अपने राइट ग्राउंड पे रखें और राइट लेग को, राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई पे रखें। इस तरह से आप पद्मासन बना सकते। और कभी भी पद्मासन लगाओ तो ध्यान रखो कि अभी हमने राइट लेग को ऊपर रखा है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम राइट लेग को नीचे की साइड लगे, पहले राइट लेग, ताकि दोनों लेग इक्वली इम्प्रूव होंगे आपके, दोनों लेग की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। नाउ अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए, ज्ञान मुद्रा किसको कहते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर टचिंग होता है एक दूसरे के, टिप ऑफ योर थम्स एंड इंडेक्स फिंगर, एंड देन प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट नी। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के मूल में लगा दे, ये ओंकार मुद्रा है। और दोनों फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर स्ट्राइट रहेगी। जब आपको राइट नोस्ट्रल को बंद करना हो थंब से बंद करेंगे, जब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना हो तो रिंग फिंगर से बंद करेंगे, रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। हम बहुत सिंपल वे में कर रहे हैं, 4 राउंड लेंगे, 4 काउंट में हम श्वास लेंगे और 8 काउंट हम श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, इनहेल योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमेशा पहले चालू करते हैं अगर हम अनुलोम विलोम करें। अगर आपकी श्वास में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले नोटिस करो कौन सी आपकी ब्रीथ चल रही है, लेफ्ट साइड नाड़ी चल रही है या राइट नाड़ी एक्टिवेट हो रही है। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों उंगलियों को इस तरह से नाक के नीचे लगा देना, 1 या 2 इंच का फासला बनाते हुए, एंड देन श्वास को छोड़ते हुए देखना है कि कौन सी नाड़ी चल रही है, किस उंगली पे ज्यादा आपकी ब्रीथ आई, वो नाड़ी आपकी एक्टिवेट है। या फिर आप इस तरह से एक कागज की पन्नी रख के भी देख सकते हो, जब जिधर से ज्यादा झुकती है ना वही श्वास आपकी चल रही। तो अभी मेरे जैसे राइट नॉस्ट्रिल चल रही, तो मैं राइट से भी श्वास को ले सकती हूँ, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है तो हम
शुरुआत राइट से भी कर सकते हैं। इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। तो हम कंफर्टेबली ब्रीद इन कर सकते हैं क्योंकि हमारी राइट एक्टिवेट है या लेफ्ट एक्टिवेट है, जो एक्टिवेट है वहां से सांस ले रहे तो कंफर्टेबली ले पाए। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, चालू रखें इसको। क्रॉस लेग पोजीशन या अर्ध हलासन। नाउ inhale left nostril, 4 count, exhale right nostril up to 8 count, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब तक 8 काउंट होता है अपने मन में इसको काउंट कर सकते हैं, तब तक आपको श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे। इतना धीरे छोड़ो कि आपके श्वासों की आवाज आपको भी सुनाई ना दे। फिर से राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेनी है। इनहेल राइट नोस्ट्रिल up to 4 count and exhale left nostril up to 8 count. Inhale left nostril up to 4 count. Exhale right nostril up to 8 count. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. हाथ को हमेशा अपने चेस्ट के पास रखें इस पोजीशन में, ताकि कभी भी आपका हाथ नहीं दुखे। बहुत सारे टाइम क्या है, ऐसे लोग बात करते हैं तो उससे आपका यहाँ से शोल्डर पेन होने लग जाता है। जब आपको ज्यादा 15-20 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी बीमारी है, तो आप 20 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करें। उससे बहुत फायदा होता है, हमारी 72,000 नाड़ियां सारी शुद्ध हो जाती है। तो हमें हाथ को इस तरह से चेस्ट के पास रखते हुए, अपने रिंग फिंगर और थंब का यूज करते हुए हमें प्रणव मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ये अनुलोम, ये सिर्फ अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग बता रही हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम आयाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी आयाम करना है, आपको श्वास को रोकना है बीच में भी और बाहर भी। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ करते हैं तब हम उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। अभी हम जस्ट अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे हैं, सिर्फ कामिंग डाउन इफेक्ट देता है हमें। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल and exhale right up to 8. Inhale right nostril, exhale left. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. Knee breathing, both the hands on your knee. अब हम ब्राह्मरी चैंटिंग करेंगे। ब्राह्मरी में हमें ओंकार बोलना है, लेकिन हमारा मुंह बंद रहेगा, तो एक हमिंग बी साउंड निकलेगा। सिर्फ नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही श्वास छोड़ना है, हमिंग बी साउंड के साथ। यानी मकार की साउंड आप के अंदर बनेगी। नाउ उस समय हम षण्मुखी मुद्रा बना सकते हैं, या हम डायरेक्ट ऐसे शुरुआत में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन के साथ करें तो दोनों हाथ को नीचे रखते हुए ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं, या हम इंडेक्स फिंगर से अपने ये नेक, जो कान के पास जो मसल्स होती है, उभरी हुई मसल्स, उसको दबाते हुए भी इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाएगी और फिर आप अच्छे से अपने अंदर उतर सकते हैं। तो इस तरह से हम
हमिंग बी साउंड के निकालेंगे 3 टाइम्स कंटिन्यूसली। जब भी आपकी श्वास उखड़ने लगे फिर से श्वास लो और फिर तो जब हमिंग भी साउंड करो तो टंग को पैलेट पे ले जाके करना है। टंग को पैलेट पे लगाते हुए श्वास को अंदर ले। ये हमने जस्ट इंडेक्स फिंगर से किया। हम इसको षडमुखी मुद्रा में भी और किसी दिन देख सकते हैं ऐसा। नाउ टेक अ डीप ब्रीदिंग। 3 ओंकार बोलेंगे। इनहेल, टेक अ डीप ब्रीदिंग। ओ, ओ, the silence into your whole body. Now you each keep your eyes closed and feel the listen to the instructions carefully. धीरे धीरे ध्यान में कैसे उतर सकते हैं। हमने जैसे अभी कामरी चैंटिंग करी, ये हमें एकदम अपने अंदर उतरने के लिए सफलता देता है। हम अपने अंदर उतरते जाते हैं। फिर ओंकार चैंटिंग से हमारा और ध्यान एकाग्र होने लगता है। इसके वाइब्रेशन एक एक सेल में पहुंचते हैं। ओम साउंड एक पावरफुल साउंड। धीरे धीरे हम अपने श्वासों को देखने लग जाएं। जब हम ओंकार लेते हैं तब भी इनहेल और एक्सहेल के साथ हम ओंकार बोलते हैं। इनहेल, सिंपली इनहेल एंड देन एक्सहेल विद ओंकार। तो इसी तरह से हमें इनहेल और एक्सहेल को हमारी बॉडी के अंदर देखना है। बर्दाश्त अंतर चक्र से हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उसे हम जब देखते जाते हैं। नाक के थ्रू श्वास अंदर आ रही है, नॉस्ट्रिल के थ्रू ही बाहर जा रही है। comes in your nostril and goes out through your nostril. Observe the breath. हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों को देखना है। बस जब हम इतना फोकसली, इतना ध्यान से हम जब श्वासों को देखते हैं अपने अंतर चक्षु से, तो हमारे विचार स्वतः ही शून्य हो जाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें और कुछ करना है या कोई काम है या कोई बात है या कोई सोच है दिमाग में। सिर्फ हम अपने श्वासों को देखने में लग जाते हैं। हमारी जागरूकता, अवेयरनेस श्वासों की तरफ होने से हमारे विचार शून्य होते जाते हैं। और धीरे धीरे हम अपने ध्यान की गहराई में पहुंचने लगते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं, ये हमारी अल्फा स्टेज ऑफ माइंड होती है। जब हम पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं अपने श्वासों के प्रति, तो हम डेल्टा के स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, जीरो स्टेट ऑफ माइंड। हम जागरूक हैं लेकिन हमारे अंदर कोई विचार नहीं।
सिर्फ हम ब्रीथ के प्रति फोकस है, हमारी ब्रीथ को देख रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं। एक तरह की धारणा, अष्टांग योग में जो छठा पाद है धारणा, वही हम कर रहे हैं अपनी श्वासों पे धारणा। ऑब्जर्व द ब्रीथ। इसी से धीरे धीरे हम ट्रांस में चले जाते हैं, वही हमारी समाधि स्टेट है। जब ये बहुत ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा कई समय घंटों तक होती तो वो उतने समय के लिए समाधि होती, लेकिन अगर हम 1 मिनट भी जाते हैं तो 1 मिनट की भी हम समाधि अवस्था, ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचते। जब कोई भी आसन 3 घंटे से ज्यादा सिद्ध हो जाए तो वो आसन कहलाता है। तो हमारे समाधि की स्थिति जब हमारा विचार भी शून्य हो जाए। अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसन को महसूस करें। एक ओंकार के साथ प्रार्थना करेंगे। इनहेल ओम, योर पाम नियर द चेस्ट इन नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा बना ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Let it calm. Cup your eyes and slowly massage your whole body. Gratitude to Mother Earth. Mother Earth को नमस्कार करें एंड देन प्रणाम करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने हथेली को खोलेंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने गुरु मेंटर का धन्यवाद करें, इस पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, यूनिवर्स का धन्यवाद करें और अपने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें आज का ये शुभ दिन देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।